Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics, and the stock markets. I'm Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. Good evening, Sonu. धन्यवाद रंगा. गुड इवनिंग. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे. और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं एस रंगाबाश्यम. Thank you, Sonu. The top stories. Domestic indices fall for the second day in a row. Sensex declines 275 points to 35,200. Nifty closes at 10,600 level. Brent crude prices eases to $63.50 per barrel, and gold prices drift to 31,950 rupees per 10 grams in Delhi's bullion market. घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे दिन गिरावट. सेंसेक्स 275 अंक कम होकर 35,200 पर पहुंचा. निफ्टी 10,600 पर हुआ बंद. ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य कम होकर $63.50 प्रति बैरल पर आया. और दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य कम होकर 31,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुआ. प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन गिरावट में रहे. अन्य एशियाई बाजारों से मिले जुले रुख और वॉल स्ट्रीट पर ताजा बिकवाली के दौर के बीच घरेलू बाजारों में ये गिरावट आई. हालांकि अत्यधिक आपूर्ति से जुड़ी चिंताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट से बाजार को समर्थन भी मिला. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.77% की मंदी से 275 अंक कम होकर 35,200 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.53% के नुकसान से 56 अंक कम होकर 10,600 पर बंद हुआ. आईटी क्षेत्र में बिकवाली का भारी दबाव रहा, जबकि फार्मा और बैंकों के शेयर बाजार के कमजोर रुख से बचने में कामयाब रहे. व्यापक बाजार की बात करें तो यहां पर प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर था और दोनों प्रमुख सूचकांक तेजी पर बंद हुए. एसएनपी बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.64% के उछाल में रहा और बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 0.06% की वृद्धि दर्ज हुई. Well, as Sonu just mentioned, the market declined for a second session in a row, tracking mixed cues from other Asian markets and a renewed bout of selling on the Wall Street. However, a steep fall in crude oil prices on excess supply concerns supported the indices. The Sensex at the Bombay Stock Exchange today fell 275 points or 0.77% to 35,200. The Nifty at the National Stock Exchange was also down 56 points to close at 10,600. IT shares witnessed major selling pressure, while pharmaceuticals and banks shares bucked weak market trend. The S&P BSE Mid-Cap Index rose 0.64%. The S&P BSE Small Cap Index rose 0.06%. Both these indices outperformed the Sensex. The market breadth indicating the overall health of the market was negative. On the BSE, 1,268 shares rose and 1,314 shares fell. A total of 143 shares remained unchanged. Among the sectoral indices on the BSE, the realty sector was up 1.5%. Healthcare moved up 1%. Consumer durables was up 0.8%. Telecom was up 0.6%. BankX moved up 0.6%, while basic materials was up 0.5%. Finance, consumer discretionary goods and services and industrials were up by between 0.1 and 0.4%. The auto index was down 0.1% and oil and gas index was also down about the same. And these two indices outperformed the index. While metal index was down 0.8%, power was down 1%, energy, tech and IT indices were down between 1 and 3%.
और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अविनाश गोरखशेखर, जो है बाजार विशेषज्ञ। अविनाश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज जो हमने बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी है, 2 दिनों में लगभग सेंसेक्स में 575 अंकों की गिरावट कुल आ चुकी है। क्या लगता है आपको, क्या कारण है इस गिरावट का दौर फिर से बाजार में लौटने का? क्या ये चिंता का विषय है? आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में जो गिरावट आई है वो ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स से आई है। ग्लोबली हमने देखा है कि एशिया और यूएस के मार्केट्स में जिस प्रकार की बिकवाली आई है उसका मेन जो फॉलबैक हो गया है वो इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया पे हो चुका है। हालांकि थोड़े से पॉजिटिव फैक्टर्स इंडिया के लिए जरूर आए हैं, जैसे कि क्रूड के कीमतें काफी जोर से गिरे हैं, रुपया भी अप्रिशिएट हो चुका है। बट नियर टर्म में ग्लोबल मार्केट्स कमजोर होने के कारण थोड़ी बहुत एफआई की सेलिंग भी बढ़ी है और इसका रीजन यही है कि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी बहुत अर्निंग्स को लेके और यूएस चाइना को लेके वापस थोड़ी सी चिंताएं हुई है, तो ये फैक्टर्स मार्केट्स पे थोड़ी हावी हो चुके हैं। तो ओवरऑल मार्केट्स में हमको लग रहा है जो करेक्शन एक्सपेक्टेड था वो ऑलरेडी इन कारणों से आया है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि इससे कोई चिंता की बड़ी विषय है, क्योंकि आगे चल के हमको लग रहा है कि जो इलेक्शंस आएंगे, स्टेट इलेक्शंस के जो नतीजे आएंगे वो मार्केट्स को एक प्रॉपर दिशा देंगे और तब तक ये मार्केट ऐसे ही रेंज बाउंड थोड़ा सा नेगेटिव बायस से ट्रेड करेगा। जो आपने अभी मेंशन किया एफआईआईएस के बारे में, एफआईआईएस अगर हम ब्रॉडली देखें तो नवंबर में वो नेट बायर्स बन गए हैं भारतीय बाजार में, जबकि अक्टूबर में उन्होंने बहुत ही ज्यादा सेलिंग करी थी। सो आपको लगता है कि एफआईआईएस का जो ब्रॉडली रुख है वो फिर से पॉजिटिव हो गया है भारतीय बाजार की ओर, और शायद हम आगे चलकर जब फिर तेजी बाजार में लौटेगी एफआईआईएस का भी सपोर्ट हमें लगातार मिलेगा? मुझे लग रहा है कि एफआईएस की बाइंग डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक तरीके से तो जरूर जारी रहेगी, लेकिन ओवरऑल ब्रॉड ट्रेंड अभी भी लग रहा है कि एफआईएस की बिकवाली का जो ट्रेंड है वो ज्यादातर इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की बहुत स्ट्रांग चांसेस है। इनफैक्ट फेड की पॉलिसी के हिसाब से 2019 में भी कम से कम 3 या 4 हाइक्स आने का अनुमान है। वहां की इकोनॉमी भी अच्छी कर रही है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट रेट्स भी, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी कम हो चुके हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल हमको लग रहा है कि शायद नवंबर का महीना इंडियन मार्केट्स के लिए जरूर अच्छा था, लेकिन आगे जिस प्रकार का रवैया फेड लेता है और अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स वहां पे आते हैं तो हो सकता है कि ये जो ट्रेंड सेल ऑफ का हमने एफआई में देखा है वो जारी रहेगा। तो अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एफआई की जो बिकवाली है वो इमीडिएटली रुकेगी। आगे चल के ये एफआई फेड का जो ट्रेंड है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। Yeah, and Avinash, let's also talk about the broader market. And I want to draw your attention to the performance of the mid-cap and the small-cap segment. On a day when the Sensex and Nifty goes down by almost 1%, we see these two segments, the mid-cap and small-cap, doing well and moving up. How do you read this? I think clearly, from a very near-term perspective, I think most of the mid-caps which have been hammered down, from their peak levels are down by almost 60 to 70%. On an average, the mid-cap index is down by almost 40 to 50%. So I think what we are seeing is a gradual accumulation of good quality mid-caps, and some bounce is definitely, quite justifiable, considering that some of these companies in the Q2 have done reasonably well. I would believe that, even as of now, liquidity continues to be an issue for the mid-caps. Yeah. And I think these are going to be selective bounce, for stock-specific companies. Across the board, I wouldn't be surprised that we might see a lot of volatility ahead of the state elections and the general elections. So I think it's going to be a tough call for the mid-caps. Overall, I think, good companies which are medium size and which are growing their business and plus have limited debt on the balance sheet. Yeah. I think these are definitely candidates where you could see these kind of bounces coming, and there could be good re-rating here. Yeah. And Avinash, the past 3 months have been really tumultuous. We have seen ups and downs from 39,000 level of the Sensex, going down to almost 32,000, and from there on, again, an upward move. And now at this level of 35,000, the Sensex is somewhat kind of stabilizing. Do you see the Sensex, moving up emphatically in the next, 3-4 weeks, and especially towards before the end of this calendar year? So I would believe that any rise would be dependent now, at least in the near term, as to what the state elections are going to, the results are going to throw. I think by December 11, it will be very clear as to
what is the trend for the ruling BJP government. In case the BJP wins both Rajasthan as well as Madhya Pradesh, you could expect the index to even go beyond 11,000 and the Sensex also again gaining positive traction. But on the other side, if apart from Rajasthan and Madhya Pradesh, if BJP loses either of these states, then it's going to be a big negative surprise. In fact, the state elections would give a clear indication to the markets before the general elections, and I think these elections results would definitely give a further directional trend for the market. So till then, this market is going to remain pretty volatile. अविनाश, आपने अभी लिक्विडिटी इश्यूज की बात करी, जो कल माफ कीजिएगा परसों जो आरबीआई की बोर्ड मीटिंग हुई उसमें उन्होंने डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया. उन्होंने जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है एज पर बेसल 3 नॉर्म्स, उसका जो अवधि है वो 1 साल आगे कर दी, जिससे कह रहे हैं कि 3.7 लाख करोड़ का जो फंड्स है वो अवेलेबल होंगे लेंडिंग के लिए. उन्होंने एमएसएमईज के लोन्स में ढील देने की बात की है और उन्होंने ये भी दोहराया है कि क्रेडिट ग्रोथ रोबस्ट रहा है हाल में. सो आपको लगता है आगे चलकर शायद आरबीआई कुछ और कदम भी उठा सकता है इसी दिशा में, सीआरआर में शायद कटौती कर सकता है लिक्विडिटी को और बूस्ट देने के लिए 5 दिसंबर को अपनी पॉलिसी में? नहीं, हो सकता है क्योंकि लिक्विडिटी अभी मार्केट में काफी टाइट है और आपने सही कहा कि सीआरआर को लेके हो सकता है कि यहाँ पे आपको लिक्विडिटी ईज करने के लिए सीआरआर में थोड़ा सा लिबरल स्टांस आरबीआई ले ले. बट ओवरऑल जिस प्रकार की फंडिंग एमएससीबी को अभी अनाउंस की है, मुझे लग रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको कम से कम आने वाले 3 या 4 महीने में पता चलेगा. इमीडिएटली तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कोई इमीडिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बट हाँ, आने वाली पॉलिसी में सीआरआर को लेके थोड़ी सी लिक्विडिटी लूजन करने के लिए ये डिसीजन आरबीआई गवर्नर जरूर कर सकते हैं. बट ये इन्फ्लेशन के ऊपर निर्भर है और क्रूड प्राइसेस के ऊपर. अगर क्रूड प्राइसेस कंटिन्यूसली सॉफ्ट रहते हैं तो इनके लिए ये थोड़ा सा और ईज होगा क्योंकि इन्फ्लेशन विल बी अंडर वेल अंडर कंट्रोल. और रुपए की अगर हम बात करें तो रुपए में लगातार छठे दिन कल स्ट्रेंथन हुआ था रुपया, और 6 दिनों में ₹1.43 की कुल उसमें मजबूती आ चुकी है. ये कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है फैक्टर बाजार की धारणा के लिए, और किन सेक्टर्स के लिए ये कहें कि हार्मफुल है और किन के लिए बेनिफिशियल है? मुझे लग रहा है कि रुपया का जो ट्रेंड है वो अभी ऐसा लग रहा है कि रुपया का जो वॉलेटिलिटी हमने जो निचले लेवल से देखा था वो अभी एक पुल बैक दिख रहा है और हो सकता है कि 70-71 का जो रेंज है वहां पे रुपया स्टेबलाइज हो. अगर हम सेक्टर्स की बात करें, जो सेक्टर्स के लिए जो पॉजिटिव इस डेवलपमेंट से होते हैं वो ज्यादातर इंपोर्ट सेंसिटिव कंपनीज होंगी, जो बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होगी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होगी, जहां पे ज्यादातर इंपोर्ट्स उनके रॉ मटेरियल को लेके होता है. लेकिन अगर हम जो इसका वीकनेस इसको अगर नेगेटिव व्यू से देखें तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है जैसे कि आईटी है, ऑटो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो क्योंकि रुपया अगर स्ट्रांग होता है तो इनके लिए रियलाइजेशन कम होगी. तो आई थिंक ये कहना अभी मुश्किल है कि ये कितना जल्दी सेटल होगा, बट ओवरऑल एटलीस्ट इन द नियर टर्म ये सेक्टर्स पे डेफिनेटली मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा रुपया का ट्रेंड कैसे बिहेव होता है. Right, Avinash, let's see how the markets pan out in the coming days. Thank you so much for joining us on Market Mantra. Assalamu alaikum. And listeners, it's time for a quick commercial break on Market Mantra. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया. सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया. ओहो, तो ये बात है. हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे. बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है और हम स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट को, जो है आउटलुक हिंदी के एडिटर हरवीर सिंह. हरवीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. नमस्कार. हरवीर, अभी हम चर्चा कर रहे थे हमारे ऑनलाइन एक्सपर्ट से बाजार के आज के चलन पर. आपसे हम जानना चाहेंगे, आज बाजार में लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है. एक 3 दिनों का जो बढ़त का दौर था उसके बाद. तो क्या लगता है आपको, बाजार में जो ये हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, इसके क्या प्रमुख कारण हैं और आपको अंडरलाइंग धारणा क्या लगती है बाजार की, मजबूती की तरफ या नरमी की तरफ? मेरे ख्याल से कुछ तो ग्लोबल रीजन थे, बट हमारा डोमेस्टिक वजह जो देखने को है कि जो आरबीआई के साथ जो मीटिंग हुई, आरबीआई बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसमें काफी कुछ चीजें तो ईज हुई हैं.
लेकिन अभी थोड़ा एनबीएफसी के उसको लेकर के, लिक्विडिटी को लेकर के अभी भी सवाल है। मार्केट थोड़ा सा उसको रिएक्ट कर रहा है। बाकी जो है कुछ चीजों में जैसे कि एमएसएमई को ज्यादा लिक्विडिटी के लिए और लोन लैंडिंग कैपेसिटी बैंक्स की बढ़ाने के लिए, उन सब चीजों में इसमें कुछ एग्री किया है रिजर्व बैंक ने। दूसरे सबसे अच्छी बात क्या है कि जो एक गतिरोध पैदा हो गया था, कुछ इस तरीके के दोनों तरफ से बयान हो रहे थे, वो एक सहमति की तरफ दोनों पक्ष गए हैं, आरबीआई भी और सरकार भी, क्योंकि देश की ओवरऑल जो बेहतरी है उस दिशा में सोचने के लिए जरूरी भी था कि एक रेगुलेटर और एक तरफ सरकार है, उनको आपस में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से आगे के लिए एक पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, ताकि स्टेबिलिटी के साथ साथ क्रेडिट ग्रोथ भी बाधित ना हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको इकोनॉमी को ग्रो करना है, आपकी इकोनॉमी 7+ % का जीडीपी ग्रोथ से बढ़ रही है, तो और आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो क्रेडिट ग्रोथ आपको चाहिए। Yeah, and Harveer, you spoke about liquidity, and recently the RBI announced that tomorrow, that is 22nd of November, it will infuse 8,000 crore rupees into the system. So don't you think that will, augment liquidity once again, especially in the banking sector and also with NBFCs? Yes, actually, since we have seen some trouble in the NBFC sector, because NBFC, there is a process, they borrow at a short term and lends for a long term. So in that case, there was some mismatch. That was the problem came with this IL&FS. So in that case, it is important to infuse the liquidity. In some way, some government has made some arrangement. The board was changed for the particular company, as well as it was asked the system to make more liquidity available to NBFCs because their cycle should remain continue. At the same time, the worry was also about this credit facility for MSME sector. MSME sector is a very prominent sector of our economy in both the terms, in terms of creating jobs, opportunity, as well as even manufacturing. Almost more than 50% manufacturing share comes from the this MSME sector. It's a very widespread sector. It is not concentrated in some companies or in some cities. It is across the country. It goes to the tier 2 cities, tier 3 cities, even towns. So that is more important because it gives a very wide base to the economic activity in the country. So in that case, when more liquidity will be there, so banks will be in the position to lend more credit to those who are the basically borrower and all, whether it is NBFC or MSME or even other corporates. That is the important point. चर्चा को विस्तार देंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। वॉल स्ट्रीट में अमेरिका की अग्रणी टेक कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट से $1 ट्रिलियन का नुकसान दर्ज होने और कच्चे तेल की कीमतों में एक वर्ष के न्यूनतम स्तरों तक गिरावट के बाद आई मामूली तेजी के बीच वैश्विक बाजारों में आज रुख मिला जुला था। प्रमुख एशियाई बाजार मिश्रित प्रदर्शन के साथ बंद हुए। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% की बढ़त में रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% की तेजी पर बंद हुआ और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई। वहीं जापान का निकेई सूचकांक 0.4% के नुकसान में रहा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी सूचकांक में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां पर बढ़त का रुख था। फ्रांस के कैक में 0.3% की वृद्धि चल रही थी। जर्मनी का डैक्स और लंदन का फुटसी प्रत्येक 0.6% की बढ़त पर थे। And let's take a look at the American markets as well. US stocks sold off for a second day yesterday as energy shares dropped with oil prices amid fueling worries about economic growth. The Dow Jones Industrial Average declined 2.2%. The S&P 500 plunged 1.8%, while the Nasdaq Composite Index fell 1.7%. Harveer, just to take a macro view of the entire global scenario, what would you say now with the thawing of relations between China and US and the trade war seems to be on the back burner? Can we expect the global economies and because of that, the global markets to do well? No, actually, you see, now we have two biggest economy, and their relations were not very good, particularly on economic issues only. Yeah. You see,
that it's a trade is the main point, because the US president considered always that China was taking undue benefit from the American market. So there was both the sides were imposing duties and creating trouble for free trade. And that was basically spilling these issues to the other economies also. Even some of our products also went under this new regime of more higher duties and all. Yeah. So basically it disturbs the entire global trade, the free flow of goods and services. And if any disturbance comes from any side, and because both the economies are very big, so it is affecting. So in that case, if there is some things improve for the betterment, definitely the impact will be felt across the economies, whether it is Europe or US or China. But some worries from China also came due to some data and something coming from that side also. There is some weakness also coming from Chinese economy on some issues. So, but if things improve and relations improve, particularly economic issues between the China and US, it is definitely good, and we will see this the direct impact on the markets. So we can expect to see better days, brighter days. हरवीर, कुछ समय पहले तक जब बाजारों पर बहुत दबाव था तो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनको एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा था, उच्च स्तरों की पर पहुंच गई थी, 86 तक पहुंच गई थी, और रुपए में जो गिरावट आ रही थी उसको भी एक बहुत नेगेटिव फैक्टर माना जा रहा था. अब दोनों फैक्टर्स में राहत है. 64 के नीचे आ गया है, $64 पर बैरल के नीचे आ गया है कच्चे तेल का मूल्य, और रुपए में हम देख रहे हैं कि लगातार छठे दिन कल मजबूती दर्ज हुई थी और $71.5 के लेवल पर आ गया है. आपको लगता है कि ये जो दो बुनियादी फैक्टर्स हैं ये आगे चलकर मजबूती देंगे बाजार को? देखिए, दोनों इंटर रिलेटेड है. बिकॉज हम लोग बहुत बड़े एनर्जी इंपोर्टर हैं, हमारी डेफिशिएंट हम लोग एनर्जी में है, और हम लोग आयात करते हैं कच्चे तेल का, गैस का. अगर उनके दाम बढ़ते हैं तो सीधा जो है हमारा जो फोरेक्स है उसके ऊपर दबाव आता है. हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो डॉलर की डिमांड ज्यादा निकलती है, हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं. नतीजा हमारा रुपया कमजोर होता है, तो दोहरी मार हमारी इकोनॉमी पे पड़ती है. रुपया और कमजोर होता है और हम लोग महंगा तेल खरीदते हैं. एक नेगेटिव साइकिल होता है. सो इसलिए जब वहां पर ये रिवर्स होता है कि $80 से घटते घटते अब $63-64 पर बैरल पे क्रूड आया है, तो नेचुरली वी हैव टू स्पेंड लेस डॉलर्स that directly impacts rupees rate against the dollar. So that is, and then both the benefits comes together. So that is the good sign for हमारे लिए जो है एक तरीके से. और आप देखिए कि उसका और भी बड़ा इम्पैक्ट क्या है कि बिकॉज जो डेली प्राइसेस हम लोग जो रिटेल प्राइसेस हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उसका दाम बदलता है, तो वो अपने पीक से घट के काफी नीचे आ गया है. तो इसका एक मैसेज भी जाता है कंज्यूमर के बीच में, भी एक पॉजिटिव मैसेज आता है. प्लस इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करता है. तो इन्फ्लेशन प्रेशर कम होना वो भी इकोनॉमी के लिए, जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. तो ये सारी चीजें एक दूसरे से एक अंतर संबंध उनका है, और अब ये सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं, तो उसका फायदा डेफिनेटली हमें मिलेगा. लेते हैं आज की अगली खबर. आज विश्व मछली पालन दिवस है. दुनिया भर में इस व्यवसाय से जुड़े लोग इस अवसर पर रैलियां, कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का आयोजन कर मानव जीवन के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं. एक ट्वीट संदेश में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और इसके पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए इस पेशे से जुड़े लोगों के प्रयासों की सराहना की है. उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के लिए बनाए गए 7,522 करोड़ रुपए के मत्स्य पालन बुनियादी ढांचा विकास निधि से उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. हम जब भी एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ होनी चाहिए, फार्मर्स की इनकम डबल होनी चाहिए, तो जब भी हमने इस पर डिस्कशन किया, आपने हमेशा कहा है कि सप्लीमेंट्री उसमें एलाइड एक्टिविटीज का बहुत बड़ा रोल है. सो ये जो फिशरीज है उसके साथ साथ और कौन से ऐसे आपको दिखाई देते हैं एवेन्यूज जहां फार्मर्स अपनी जो क्रॉप से जो इनकम है उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं? आपने ठीक कहा है कि देखिए कि सिर्फ क्रॉप इनकम से किसानों के हालात, इकोनॉमी बेहतर हो जाए बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं. और इसके साथ में जो दूसरी एक्टिविटी हैं जो कि वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, कृषि पर निर्भर करती हैं, वो डेयरी हो, वो फिशरी हो, या और दूसरे के इस तरीके के कारोबार हो जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
सो वहां पर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो किसानों की आय के जो स्रोत हैं वो मल्टीपल हो जाएंगे। मल्टीपल होने से अगर एक तरफ कुछ कम है तो दूसरी जगह से आएगा। और सप्लीमेंट जब भी होता है तो उसको एक अलग तरीके का इम्पैक्ट होता है सप्लीमेंट्री का, क्योंकि जो आपके पास ये है बाकी और उसमें आ रहा है। और फिशरीज के लिए पिछले दिनों एक बड़ा कोष भी बनाया गया था। गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया था कि हमें एक टारगेट है कि वहां तक पहुंचने के लिए फिशरी प्रोडक्शन को, जो फ्लैश वाटर में इनलैंड फिशरीज है या उस तरीके ब्लू रेवोल्यूशन, क्योंकि हम लोग कहते हैं ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, तो ब्लू रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है और बड़े पैमाने पर इसमें संभावना बहुत ज्यादा है। एक तो न्यूट्रिएंट पॉइंट से भी अगर हम देखें, न्यूट्रिशन का हमें बढ़ोतरी करना अपनी आबादी के लोगों के लिए जो है भोजन में, और उसके चलते एक बेहतर आमदनी का स्रोत किसानों के लिए ये पैदा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जरूरी है और इसमें आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। Yeah. Very briefly, what would you say? As far as fisheries is concerned, it's mainly, a huge contribution comes from marine fishing, whereas, fish farming has not taken off in a big way in the country. No, actually, if you see fish farming, definitely earlier it was thought that in rivers and this marine, this is the important. But now farmers are taking up in a big way. If you go to the state, even a state like Haryana, fishery production is going up, and Bihar and Jharkhand in West Bengal, fisheries production is really going up, basically for this inland waters. Right. So I think it is a positive sign. Let's take a look at the oil scenario. Oil bounced back above $63 per barrel on Wednesday to claw back some of the previous day's 6% plunge, lifted by a report of an unexpected decline in U.S. Crude inventories. Brent crude prices in intraday trade today were trading around $63.61, while WTI prices were at around $54.46 when reports last came in. अब नजर डालते हैं सराफा बाजार पे। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य आज फिर गिरावट दर्ज करते हुए 50 रुपए कम होकर 31,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुआ। ये लगातार तीसरा दिन है जब सोने में गिरावट आई है। स्थानीय आभूषण निर्माताओं की मांग कमजोर रहने के बीच वैश्विक रुख में मंदी के अनुरूप भारतीय बाजार में भी गिरावट आई। पिछले 2 दिनों के दौरान सोने में 150 रुपए की गिरावट दर्ज हो चुकी है। चांदी में भी मंदी का ही रुख था और ये 100 रुपए सस्ती होकर 37,800 रुपए प्रति किलो दर्ज हुई। कारोबारियों के अनुसार डॉलर में मजबूती के चलते सुरक्षित निवेश के रूप में कीमती धातुओं की मांग कम हो जाने से वैश्विक रुख में आई मंदी का प्रतिकूल असर बाजार की धारणा पर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर के बाजार में सोना 0.05% की गिरावट से $1,221.50 प्रति आउंस पर आ गया, जबकि चांदी $14.40 प्रति आउंस पर स्थिर रही। ब्रीफली आपको क्या लगता है कि क्या तेल में नरमी बनी रहेगी? एक सेंटेंस में अगर आप बताएं। मेरे ख्याल से जिस तरह डायरेक्शन में ऑयल जा रहा है और जो ईरान के सैंक्शंस के बाद थोड़ी चिंताएं बन रही थी, वो अब थोड़ी दूर हो रही है। अब कार्यक्रम हमें समाप्त करना होगा। आप आए हरवीर, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a quick look at the top stories. Domestic indices fall for a second day in a row. Sensex declines 275 points to 35,200. Nifty closes at 10,600. Brent crude prices eases to $63.50 per barrel, and gold prices drift to 31,950 rupees per 10 grams in Delhi's bullion market. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.